আমাদের এই সারেঙ্গা সিদ্দিকা দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা টিচার মানে ডে বিভাগের আছে 15 জন। আপনার ওই কেজি সেখানে আপনার মানে আমাদের ম্যাডামরা আছেন 8 জনের মতো। আর হেফজ বিভাগ যে আছে সেই হেফজ বিভাগে 2 জন আছে, মানে 2 জন, মানে একজন মোটামুটি আপনার হেফজ বিভাগের করেন, আর যখন ছেলেদের মানে দার্স হয় 2 জনই মানে দেখে। আর এনাদের সমস্ত কিছু মানে টাকা পয়সা আমরা ঠিকভাবে দিতে পারছি না, মানে আমাদের বিশাল সমস্যা মানে হয়, মানে ঠিকভাবে ওনাদের প্রতি মাসে আমরা ঠিকভাবে মাইনে দিতে পারি না। आज हम सारंगा सिद्दीकिया मदरसा के करीब आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये मस्जिद के साथ ये मदरसा का, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मस्जिद का गेट है, और यहाँ पर जो है मदरसा का गेट आपके पास देख सकते हैं। हम ये इस जगह पर चलेंगे, इस सीढ़ी से और देखते हैं मदरसे में कौन लोग हैं, और उन लोगों से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम सीढ़ी से चढ़ते हुए मदरसे के ऊपर चल रहे हैं। देखिए ये ऑफिस यहाँ पर है, ये ऑफिस यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ये ऑफिस का हिस्सा है। देख सकते हैं এটা একটা অফিস এরিয়া। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যেখানে লেখা আছে সারঙ্গা সিদ্দিকিয়া দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আমি আপনাকে বড় করে দেখাচ্ছি, এখানে লেখা আছে সারেঙ্গা সিদ্দিকিয়া দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা। এটা হাওড়াতে আছে, সাকরাইলে আছে এই মাদ্রাসাটা। আমি যাচ্ছি এর উপরে যাচ্ছি, এখানকার লোকের সঙ্গে কথা বলবো, কথা বলে জানতে পারবো যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটা দেখতে পাচ্ছেন আপনি মাদ্রাসা বিল্ডিং, এই বিল্ডিংটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানকার, এটা একটা বাংলা মিডিয়ামের মাদ্রাসা। আপনি এই বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছেন। আপনি এই মাদ্রাসার মধ্যে আমি যাচ্ছি, মাদ্রাসার স্টাফের সঙ্গে কথা বলবো। এটা হচ্ছে মাদ্রাসা, আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে, এটা হচ্ছে মাদ্রাসা। এখানে বই টই রাখা আছে, এই যে বই এখানে রাখা আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন। বাচ্চাদের জন্য এই বইগুলো সব এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, সব বই রাখা আছে। এই বইগুলো বাচ্চাদেরকে জন্য দেওয়া যায়। এটা দেখুন একটা ম্যাপ, এখানে ব্লগ আছে, এইগুলো বাচ্চাদেরকে জন্য বোঝানোর জন্যে ব্লগটা রাখা আছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে রেজিস্টার রাখা আছে, আলমিরা সব কিছু আছে এখানে। একটা মাদ্রাসা ক্যালেন্ডার এখানে টাঙানো আছে, সেখানে পুরো পরিষ্কারভাবে লেখা আছে সারেঙ্গা সিদ্দিকিয়া দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা অ্যান্ড হিফজুল কোরআন। এটা একটা হিফজুল কোরআন মেন মাদ্রাসা, হাওড়াতে সারেঙ্গিয়া মাদ্রাসা একটা সিনিয়র সেকেন্ডারি। আমি এখানকার লোকের সঙ্গে একটু কথা বলবো और আপনাকে इंफॉर्मेशन देवर चेष्टा करब कि हम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे कि इस मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं और किस तरह की तालीम दी जाती है। আমি এসে গেছি, আপনি দেখেছেন যে আমি মাদ্রাসা অফিসগুলো আপনাকে দেখিয়েছি। তো এই মাদ্রাসা মধ্যে আমি একজন কর্মীকে এখানে পেয়েছি যারা এখানে থাকেন, কাজ করেন। এবার মাদ্রাসা সম্বন্ধে উনি কিছু আমি जानते চাইব उन्हीं की बोलते চাইছেন मदरसा কীভাবে চলছে না চলছে। हम यहाँ इस मदरसा में आए हैं जो सारंगिया मदरसा सिद्दीकिया दारुल उलूम मदरसा है जो हावड़ा के अंदर है। इस मदरसे के एक जो है कर्मचारी जिसको कह सकते हैं या एक स्टाफ मेंबर जो यहाँ पर हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। আমি জানতে চাইব যে এই মাদ্রাসা সম্বন্ধে আপনি কিছু বলেন। আপনার নামটা কি, আপনার মাদ্রাসাটা কি কোথায় আছে একটু বলুন। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম মোহাম্মদ ফারুক শেখ, সারেঙ্গা সিদ্দিকিয়া দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা মেম্বারশিপ বলছি। তো আমাদের মাদ্রাসা বিগত 40 বছরে
কোনো আইনি করতে পারছি না। আর আমাদের মাদ্রাসা নতুন করে মডেলিং এমন কনভার্ট করতে চাইছি। অনুরোধ করে আপনারা কীভাবে করব আপনারা একটু সহযোগিতা করুন। আমাদের এখানে ডে বিভাগ চলে, মর্নিং বিভাগ চলে, হেফজি বিভাগ হাফিজি বিভাগ চলে। তা দয়া করে আমাদের কীভাবে আমাদের আইনি করতে আগে বাড়তে পারবো সেই সিচুয়েশনে আপনি আমাদের জন্য সহযোগিতা করুন। এইখানে এই মাদ্রাসাতে আমাকে জানাও ভাই যে কত স্টুডেন্ট এখানে পড়ে আর কোন কোন ক্লাস চলে, এগুলো একটু জানতে চাইবো। আর কবে থেকে এই মাদ্রাসাটা আছে? আমাদের মাদ্রাসা আছে বলতে 1978 সাল থেকে। 1978 তারিখ? 1978 সাল থেকে আমাদের মাদ্রাসা প্রথম ডে বিভাগ হচ্ছে 4 থেকে একদম 10 পর্যন্ত সরকারি অর্গানাইজেশনে চলে। আর এর মর্নিং বিভাগ আছে, নার্সারি কেজি থেকে নার্সারি পর্যন্ত। কোনো সরকারি এড পাও? কোনো সরকারি এড পাও? কোনো সরকারি এড পাও না, কোনো সরকারি ফেসিলিটি পাচ্ছি না। আর তারপর আমাদের আছে হাফিজি বিভাগও আমাদের আছে। আমাদের ডে বিভাগে আমাদের 170 মতন আমাদের ছাত্রছাত্রী আছে। মর্নিং বিভাগে আমাদের প্রায় 170-80 বা 100 কাছাকাছি আমাদের মর্নিং বিভাগে বাচ্চা আছে। আর হেফজি বিভাগে আমাদের 40 জন আমাদের আছে। तो आप देख सकते हैं ये मदरसा का सारी देख सकते हैं, यहाँ पर ऑफिस की बिल अलमारी रखी हुई है। ये आप देख सकते हैं ये पूरा कैलेंडर जो है यहाँ पर जो है वो मैप कैलेंडर जिसको कहते हैं, ये बच्चों के लिए यहाँ पर मैप कैलेंडर रखा हुआ है और यहाँ पर हमारे देख सकते हैं दोस्तों कि मैं इस मदरसा के ऑफिस को एक मरतबा फिर से आपको दिखलाने की कोशिश करूँगा कि देखिए ये मदरसा, ये पुराना मदरसा, देखिए पुराना रजिस्टर यहाँ पर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये ऊपर में पूरा पुराना रजिस्टर रखा, किताबें ऊपर में रखी हुई है। आप देख सकते हैं ये पूरा मैप जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ल्ड मैप यहाँ पर रखा हुआ है बच्चों को दिखलाने के लिए। और ये देखिए सरंगिया मदरसा का अपना जो है वो कैलेंडर है। इस कैलेंडर के नीचे जो है आप जो है इसको ज़रा से उठाइए, इस कैलेंडर को उठाइए। इस कैलेंडर के नीचे जो है देखिए आप देख सकते हैं कि बच्चों को हर तरह के पर्सनालिटीज और जो है डिग्निटी जितने हमारे गुजरे हैं और जितने पायनियर लोग हमारे से यहाँ से गुजर चुके हैं उन सबको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बच्चों को पढ़ाई जाती है कि उनको चेहरा पहचाना जाता है, उनके कारनामे बताए जाते हैं। आप देख सकते हैं इतने सारे लोग जो है जो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं ऊपर से अगर देखा जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के आप नीचे तक देखें तो मदर टेरेसा तक ये तमाम लोग हैं। आपके अमर्त्य सेन भी हैं और गांधी जी भी और तमाम जो है बाल गंगाधर तिलक तमाम लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू वगैरह सभी। तो बच्चों को इन तमाम चीज़ों के, इन तमाम लोगों के बारे में, इन तमाम पर्सनालिटीज़ के बारे में बताया जाता है ताकि बच्चे इन लोगों से अवेयर हो सके, आगाह हो सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने हमारे इस मदरसे के बहुत ही उस्ताद यहाँ पर बहुत ही ज़िम्मेदार शख्स आ चुके हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि ये मदरसा कब से चल रहा है और ये मदरसा किस तरह रन कर रहा है और इस मदरसे में इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है और कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, किस चीज़ की तालीम दी चाहिए। सर आप एक मरतबा थोड़ी सी हमें थोड़ा सा बाइट दें अपना। जी हमारे ये मदरसा जोरे करो, एक जोरे আমাদের এই মাদ্রাসা ছাত্র মানে আপনার 350 মতো আছে। তবে এখানে ডে বিভাগ আছে, হেফজ বিভাগও আছে এবং আপনার কেজি বিভাগও আছে। তবে এখানে আপনার ওই আরবি এবং জেনারেল সমস্ত কিছু পড়াশোনা করানো হয়। তবে আমাদের মাদ্রাসায় এরকম ছেলেদেরকে বডিও আমাদের ব্যবস্থা করে রেখেছি। তবে আমাদের চালানো খুবই সমস্যার হয়ে পড়ছে, মানুষের কাছে দাম চেয়ে আমাদের এই সংস্থাটা চালাতে হয়। আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে, মানে অনেক সময় আমরা ঠিকভাবে শিক্ষকদের মাইনেও দিতে পারি না। যেমন এই বছরেই মানে এই যে সামনে মাস আছে এই মাসে মোটামুটি মাইনে দিয়ে আর আমাদের দেওয়ার মতো ক্ষমতা নেই, এই অবস্থা আমাদের মাদ্রাসা। এখানে কত বাচ্চারা পড়ে? মানে আপনার ওই নাম্বার অফ স্টুডেন্টস আপনার ওই ডে বিভাগের ডে বিভাগের মোটামুটি আপনার যেটা সেটা 170 আছে। মর্নিংয়ে আপনার মানে আপনার 100 থেকে 150 হবে মর্নিং। তারপর আপনার হেফজ বিভাগের 25 জন ছাত্র আছে। ওই 350 মতন এই মাদ্রাসাতে বাচ্চারা
পড়াশোনা করে। তো आप देख सकते हैं नाजरीन कि हम यहाँ पर जो है खड़े हैं। আমাদের এই সারেঙ্গা সিদ্দিকা দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা টিচার মানে ডে বিভাগের আছে 15 জন। আপনার ওই কেজি সেখানে আপনার মানে আমাদের ম্যাডামরা আছেন 8 জনের মতো। আর হেফজ বিভাগ যে আছে সেই হেফজ বিভাগে 2 জন আছে, মানে 2 জন মানে একজন মোটামুটি আপনার হেফজ বিভাগের করেন, আর যখন ছেলেদের মানে দার্স হয় 2 জনই মানে দেখে। আর এনাদের সমস্ত কিছু মানে টাকা পয়সা আমরা ঠিকভাবে দিতে পারছি না, মানে আমাদের বিশাল সমস্যা মানে হয়, মানে ঠিকভাবে ওনাদের প্রতি মাসে আমরা ঠিকভাবে মাইনে দিতে পারি না। और यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त तो जावेद साहब से भी मैं इस मदरसे के ताल्लुक़ से जानकारी करने की कोशिश करूँगा। तो আমি জানতে চাইবো জাভেদ সাহেব কিছু এই মাদ্রাসা সম্বন্ধে যদি কিছু জানতে বলার আছে আপনি বলতে পারেন। नाज़रीन जितने लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, मैं उनसे मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि हौड़ा के एक छोटा सा इलाका है सकरेल, वहाँ पे एक सारंगा ब्लॉक है, सारंगा 1, 2, 3, वहाँ पे एक मदरसा है सारंगा सिद्दीकिया दारुल उलूम सीनियर मदरसा, जहाँ पे हिफ्ज़ कुरान बच्चों के लिए होता है। यहाँ तकरीबन 170 बच्चे हैं और ये लोग अपने फंड से बहुत दिनों से इन लोगों की इमदाद कर रहे हैं और लोकल फंडिंग से कुछ डिपेंड करते हैं, बट अभी तक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोई फंडिंग नहीं आया है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द मदरसा दैट इफ़ यू पीपल कैन कम फॉरवर्ड एंड हेल्प देम आउट, असिस्ट देम आउट, या इनको किसी तरह का रास्ता कैसे बताया जाए। हम लोग अपने तौर से अपनी नवैयत से जिस तरह भी हो रहा है लोगों तक पहुँच रहे हैं और लोगों से ये कोशिश कर रहे हैं कि मदरसा को एफिलिएशन कैसे दिलाया जाए, क्योंकि हालात बहुत ही नाजुक है और अपने फंडिंग से ज़्यादा भी मदरसा चल नहीं पाएगा। तो हमारे नाज़रीन जितने लोग हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं या हमारे वीडियो उनके पास जाएँ, उनसे गुजारिश है कि एक बार वो ज़रूर मदरसा में आए और अपने आँखों से आके देखें कि यहाँ का कंडीशन बहुत ही अप टू डेट नहीं है। इसको अप टू डेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। टीचर्स हैं लेकिन फंडिंग की क्राइसिस है, ये लोग बहुत मुश्किल से ये मदरसा रन कर रहे हैं। तो मैं उनसे मुद्दबाना गुजारिश करूँगा एक बार ज़रूर आए हमारे मदरसे में, इनके मदरसे में, और आके इमदाद करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि हम 35 इमदाद करें, अपने सोच, अपने ख्याल, अपने कुछ आइडियाज़ इनको दे सकते हैं, इनको किसी लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन की कमी है कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर रियाज साहब का जिन्होंने ये मौका दिया और वो यकीन इतने दूर अपने इलाके से चल के आए। यहाँ पे तकरीबन 35-40 किलोमीटर दूर हौड़ा से ये मदरसा है और मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तौर से वीडियो बनाया। सो आई एम रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरीवन टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड विद योर माइटी कंट्रीब्यूशन। डोंट लुक इनटू द पॉकेट दैट व्हाट यू हैव, लुक इनटू योर इंटेंशन दैट योर इंटेंशन शुड बी प्योर टू हेल्प एंड असिस्ट मदरसा। थैंक यू। हम इस मदरसा में आ चुके हैं और आप यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, जो एडमिशन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश की है कि इस मदरसे के अंदर क्या मदरसे की हालत क्या और किस तरह ये मदरसा रन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बताया इन्होंने, यहाँ की जो मुंतज़मीन उन लोगों ने बताया कि 350 करीब बच्चे हैं, जहाँ हिफ्ज़ की तालीम दी जाती है, डे विभाग चलता है और मॉर्निंग विभाग भी चलता है, और यहाँ पर स्टाफ को पैसे भी दिए जाते हैं, जो मदरस पढ़ाते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन इतना पैसा भी नहीं है कि ये इन लोगों की फ़ीस अदा कर सके। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस मदरसे में आएँ और इनको जहाँ तक मदद हो सकता है इस मदरसे को अगर आप जो है माइनॉरिटी विभाग से अगर आप इसको ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश करें तो आप आकर के इस मदरसे के मुंतज़मीन को और मदरसे के ज़िम्मेदार से मिले और इनकी हेल्प करें, इनके गाइड करें, ताकि ये जो है माइनॉरिटी जो है वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से ये अपने मदरसे को रिकॉग्नाइज करा सकें। मेरी गुजारिश है कि आप ज़रूर इस मदरसे में आएँ। इस मदरसे को बचाना हम सब की ज़िम्मेदारी है, आपकी भी ज़िम्मेदारी, हमारी ज़िम्मेदारी है। हम अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए यहाँ तक आए हैं और इस मदरसे के हालात को जानने की कोशिश की है। तो नाज़रीन किराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल गालिब हिंदुस्तानी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि इसी तरह हम आपके सामने तालीमी वीडियो लेकर आते रहेंगे और अपने समाज की जो हालत ख़राब हो चुकी है उसको दिखा कर आपको हम जगाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के जरिए। तो हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए आप मेरे बेल आइकन के बटन को दबा दें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।